Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to help you in solving the exercise of this chapter, A Visit to Cambridge, written by Firdaus Ganga. So, in the previous two videos, we have learned line by line explanation of the whole chapter, that how Firdaus Ganga went to England and he actually referred Cambridge, just like Cambridge only mean England to him. So he has used Cambridge as a metaphor for England. And then after the visit of Cambridge University, he also got a chance to meet with one of the very intelligent scientist, Stephen Hawking. So we have read this chapter completely. Now it's time to go through the exercises and I'll be helping you all. So stay tuned with the video, connected with the video. Do not skip it much. If you'll skip it much, ज़्यादा से ज़्यादा skip करके आप देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आंसर है या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे छूट सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द कॉम्प्रिहेंशन चेक. हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक से स्टार्ट करेंगे. विच इज़ राइट सेंटेंस. और पहले हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर. So option 1, Cambridge was a reputed university in England. Second है, England was famous for Cambridge. And third है, Cambridge was the real England. तो इसका जो आंसर, करेक्ट आंसर होगा, that will be option number 3. Cambridge was the real England. Next question है, the writer phoned Stephen Hawking house. First option to this question is that from the nearest phone booth, from outside a phone booth, third from inside a phone booth. So इसका correct answer होगा आपका option number 2, from outside a phone booth. Next question, हम लोग question number 3 देखेंगे. Every time he spoke to the scientist, the writer felt guilty because. Now guys, you can also answer, before I could answer you, I could tell you the answer in the comment section box. चलिए इसका आंसर जल्दी से comment section box में देकर बताइए. Question number 3 का correct option क्या होगा. However, I'll be telling you the correct answer also. Option 1 है, he was not sure what he wanted to ask. Second है, he forced the scientist to use his voice synthesizer. Third है, he was face to face with a legend. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, he forced the scientist to use his voice synthesizer. Next question है क्वेश्चन नंबर 4, I felt a huge relief in the possibilities of my body. In the given context, the highlighted words are refer to. Option number 1 है shifting in a wheelchair, turning the wrist. Option 2 is standing up, walking. Option 3 is speaking, writing. Guys, you can comment this answer in the comment section. जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा. सो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टैंडिंग अप, वॉकिंग, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. ये है वर्किंग विथ टेक्स्ट. सो इफ़ यू हैव read the chapter completely, then you could be able to answer these questions. These are very you can say short question answer, not so long question answer. So you can also write down the answer in the comment section box also. However, I'll be telling you the
correct answer so that you can write it down in your notebook also. आप अपने नोटबुक में करेक्ट आंसर जो है लिख सकते हैं. मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा. पहला क्वेश्चन है, डिड द प्रोस्पेक्ट मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस? इफ सो वाई? कहता है जो व्यक्ति स्टीफन हॉकिंग से मतलब मिला या फिर मिलने का जो एक उसको मौका मिला, उसने राइटर को नर्वस किया. अगर हाँ तो क्यों? इसका आंसर आप दे सकते हैं. इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ. यू कैन लिसन इट क्वाइटली. ध्यान से सुनिएगा. यस, द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेड द राइटर नर्वस because he was someone like him who had achieved bigger things in life. The author wanted to make use of such minutes of the 30-minute meeting. Guys, आप वीडियो को पॉज करके भी जो है इसका आंसर लिख सकते हैं, अगर एक बार में आपको पूरा कंप्लीट सुनाई ना पड़े तो. Now we'll move to another question. Question number 2. Did he at the same time feel very excited? If so, why? कहता है क्या उसी वक्त पे जो राइटर है काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहा था? अगर हाँ तो क्यों? तो इसका आंसर होगा yes, the prospect of meeting Stephen Hawking made the writer he felt excited. Yes, he felt excited at the same time as he had been given half an hour to be with someone like him who had achieved bigger things in life. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर. कहता है कि आपको पहला क्वेश्चन गेस करना है. चूँकि उनके बीच बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो पहला क्वेश्चन राइटर के द्वारा साइंटिस्ट से पूछा गया था वो क्या था? तो इसका आंसर होगा द ऑथर्स फर्स्ट क्वेश्चन टू हॉकिंग मस्ट हैव बीन अबाउट हिज वेल बीइंग एंड द सोर्स ऑफ हिज इंस्पायरेशन दैट लेड हिम टू डू ब्रेव थिंग्स. आप इस आंसर को अगर फिर से सुनना चाहते हैं तो आप बैक जा करके सुन सकते हैं, पॉज करके लिख भी सकते हैं. दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर मेकिंग नोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड. स्टीफन हॉकिंग सेड, आई हैव हैड नो चॉइस. डज द राइटर थिंक देयर वाज अ चॉइस? व्हाट वाज इट? स्टीफन हॉकिंग बोलता है, क्वेश्चन सुन लीजिए हिंदी में भी. स्टीफन हॉकिंग बोलता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं था. डज द राइटर थिंक दैट देयर वाज अ चॉइस? क्या राइटर को ऐसा लगता है कि उनके पास कोई चॉइस था? और अगर था तो क्या था? व्हाट वाज इट? तो इसका आंसर होगा ऑल्दो स्टीफन हॉकिंग सेड ही हैड नो चॉइस, बट टू बी ब्रेव the writer did think there was a choice. The choice was to live creatively with the reality of his disintegrated body. Okay guys, now we'll see question number 4. Question number 4 क्या है? I could feel his anguish. What could be the anguish? Anguish मतलब एक जो पेन होता है ना, एक अंदरूनी जो दर्द होता है, दैट इज़ कॉल्ड एंग्विश. तो राइटर जो है उनके एंग्विश को फील कर सकता था. तो वो एंग्विश एक्चुअली था क्या? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द एस्ट्रोफिजिसिस्ट वुड गेट एग्जॉस्टेड बाय टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड टू फाइंड वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर. मतलब एक्चुअली जो बार बार कंप्यूटर पे वर्ड्स फाइंड करने पड़ते थे, क्योंकि वो जो बोलना चाहता था उसको टाइप करना पड़ता था. तो ये एक्चुअली उसको परेशान करता था, काफ़ी एग्जॉस्ट करता था, थका देता था. एक तो बॉडी जो था पूरा पैरालिसिस था उसमें हुआ.
So the author mentions he could feel Hawking's anguish on how even after having a beyond mind, thoughts came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. What endured the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world? इसका आंसर होगा the scientist's pure and one-way smile made the author feel like he was looking at one of the most beautiful men in the world. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6. रीड अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल मैन. विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन? तो इसका जो आंसर होगा वो द लाइन बिफोर यू लाइक अ लैटर्न हुज वॉल्स आर worn so thin you glimpses only the light inside is the incandescence of a man is the most beautiful sentence in the description of a beautiful man. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7. होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 7.1. इफ द लैटर्न इज द मैन व्हाट वुड इट्स वॉल बी? अगर मान लेते हैं कि लैटर्न जो है मैन है तो उसका वॉल क्या होगा? इसका आंसर होगा इफ़ द लैटर्न इज़ द मैन इट्स वॉल वुड बी द बॉडी और टॉर्सो. 7 का 1. 7 का 2 देखते हैं. व्हाट इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स? इसका आंसर होगा 7.2 का द ग्लो ऑफ एन इंटरनल सोल वॉज हाउस्ड विद इन द thin wall. नेक्स्ट देखते हैं 7 का 3. What general conclusion does the writer draw from this comparison? इसका आंसर होगा from this comparison the author draws a general conclusion that in eternal soul is what each one of us is and everything else is just accessory. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड विल सी द आंसर ऑफ दिस. व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड? साइंटिस्ट का जो मैसेज है डिसेबल्ड लोगों के लिए वो क्या है? इसका आंसर होगा द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिफरेंटली एबल्ड इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग दे आर गुड एट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. Why does the writer refers to the guitar incident? Which idea does it support? इसका आंसर होगा the writer spent years trying to learn to play Spanish guitar but unstringed it one night. The writer referred to the guitar incident to support Stephen Hawking's idea that differently abled people must concentrate on something they are good at. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग. व्हाट इज द ग्रैटिट्यूड फॉर? इसका आंसर होगा द राइटर एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग as he could see within Stephen an embodiment of his bravest self, the one he was moving towards and who he had believed in for so many years. Now we'll see question number 11. Guys, in this question, read the question. It says कि complete the following sentences taking their appropriate part from both boxes. तो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन. इस क्वेश्चन को मतलब इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बॉक्स ए से भी कुछ लाइन को लेना होगा और कुछ लाइन जो है हम लोग को
बॉक्स बी से भी लेना होगा, इन दोनों बॉक्सेस से लेना होगा, राइट। तो पहला का क्या होगा, पहला का होगा आपका, फर्स्ट का होगा यहाँ पे, I'll tell you, I'll read the sentence, okay. There was his assistant on the line, क्वेश्चन है, तो इसका होगा देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम, तो ये पहला का हो जाएगा, ठीक है। एंड बॉक्स नंबर बी से हम लेंगे आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, ये हो जाएगा पहला का आंसर। दूसरा का है, दूसरा क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव as if you have courage अकाउंट ऑन, तो इसका आप देख सकते हैं ये दूसरा का हो जाएगा। और बॉक्स नंबर बी से जो लाइन होगा यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड, ऑन विच यू आर, ये हो जाएगा दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन है आपका देयर ही वॉज, तो तीसरा का जो आंसर होगा देयर ही वॉज टैपिंग अ लिटिल, ये आप देख सकते हैं टैप, ये तीसरा का हो जाएगा। और बॉक्स नंबर बी से हो जाएगा आपका ट्राइंग टू फाइंड आउट, ये हो जाएगा आपका तीसरा का। चौथा का हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन है यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक, इसका हो जाएगा एंड दे आर सेइंग समथिंग, ये हो जाएगा चौथा का। और इसमें से हो जाएगा लास्ट, इट इज़ हार्ड, इट इज़ समथिंग अर्जेंट, सॉरी इसका हो जाएगा आपका अर्जेंट, होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड गाइस। फोर्थ का अर्जेंट एंड ये लास्ट वाला हो जाएगा। फिफ्थ का है क्वेश्चन एंड दे आर सेइंग समथिंग, सॉरी क्वेश्चन है इट डज नॉट डू मच गुड टू नो, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए से हो जाएगा आपका दैट देयर आर पीपल स्माइलिंग, दैट देयर आर पीपल स्माइलिंग विथ एडमिरेशन, ये हो जाएगा फिफ्थ का और ये हो जाएगा फोर्थ का। सो वी हैव completed this, now we'll see if any more question is remained. Working with language, yes, तो इसका आंसर मैं जल्दी से बता देता हूँ। I met a traveler, इसका हो जाएगा 1 कि ट्रैवलर हो जाएगा यहाँ पे पहला TRAVELER, दूसरा का हो जाएगा गाइड, गाइडेंस बन जाएगा GU, होल्ड ऑन, GUIDANCE, ये दूसरा का हो गया। थर्ड का हो जाएगा आपका सक्सेसर, सक्सेस का, सक्सीड का हो जाएगा सक्सेसर, SUCCESSOR। नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ पेल्ड, पेल का इसमें डी लगा देंगे, फेल्ड। नेक्स्ट है आपका चेयर्ड, चेयर में ED लगा देंगे
द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाई, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में चेयर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आपका सम पीपल से योर्स ट्रूली। ट्रू का ट्रूली हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। होल्ड ऑन, ट्रूली, let me take the brush, it is not TRULY। लास्ट क्वेश्चन है 7, आई विश इट हैड बीन अ, इसका लास्ट का हो जाएगा ड्रॉन, DRAWA। नाउ इज एनी मोर लुकिंग एट द वर्ड्स, नो, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। Okay, this question I'll leave on you to complete by your own, since we have completed the question answer and exercise of this chapter as well. So now I will request you all people to do the needful work in your notebook. You can pause the video and you can make your notes. It will be quite helpful for you. Now we'll meet in our next video with a new topic, new chapter. Till then, bye. Take care and have a nice day. Thank you everyone.